We were seeing about journey towards Canaan. The second oneness, not my will, but God's. This is the first lesson to a believer. Salvation is the sole work of God. How the Israelites were redeemed from the Egyptian plagues through faith in God. Every believer is being rescued from world's calamity through faith alone. So that the scripture says us, it is impossible to please God without faith. Salvation itself is a choice of faith. People choose to follow Jesus through their firm decision by faith. कनान की ओर यात्रा 2 मेरी इच्छा नहीं बल्कि ईश्वर की। यह एक आस्तिक के लिए पहला सबक है। मुक्ति ईश्वर का एकमात्र कार्य है। मिस्र की विपत्तियों से इस्राएलियों को कैसे छुड़ाया गया था? इससे परमेश्वर में विश्वास बढ़ता है। प्रत्येक विश्वासी को केवल विश्वास के माध्यम से दुनिया की विपत्ति से बचाया जा रहा है। इसलिए वो शास्त्र हमें कहता है, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। उद्धार स्वयं ही विश्वास का एक विकल्प है। लोग विश्वास के द्वारा अपने दृढ़ निर्णय के द्वारा यीशु का अनुसरण करना चुनते हैं। In the beginning, Israelites didn't know God's strength and power. Now they started to believe in God's sovereignty. Here we can see God's work in two different ways to rescue Israelites from Egyptian bondages. First, God allowed the affliction in the life of Israelites so that they will have a mind to leave Egypt. In Egypt, Israelites were troubled that much so that they badly needed an escape. So don't brood over your struggles in life. All such are driving forces which will bring people towards God. देखिए, शुरुआत में इजरायली परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ्य को नहीं जानते थे। अब वे परमेश्वर की संप्रभुता के कार्य पर विश्वास करने लगे। यहाँ हम मिस्र की गुलामी से लोगों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर के कार्य को दो अलग अलग तरीकों से देख सकते हैं। पहले परमेश्वर ने इस्राएल के जीवन में क्लेश अनुमति दी ताकि वे मिस्र छोड़ने का मन बना सके। मिस्र में इजरायली इतने अधिक परेशान थे कि उन्हें बचने की सख्त आवश्यकता थी। इसलिए जीवन में अपने संघर्षों के बारे में चिंता न करें। ये सभी प्रेरक शक्तियाँ हैं जो लोगों को ईश्वर के करीब लाती हैं। Imagine if at all the Israelites had a comfortable stay, fair salary, dignified lifestyle in Egypt. Would they have willingly left Egypt? No, they won't. So God allowed such troubles to make their mind to hate and leave Egypt. So whenever God allows such problems in our life, don't worry, understand that it all happens with a purpose. कल्पना कीजिए, यदि सभी इस्राएलियों के पास मिस्र में आराम से रहने, उचित वेतन और प्रतिष्ठित जीवन शैली होती, तो क्या वे स्वेच्छा से मिस्र छोड़ देते? वे नहीं करेंगे। इसलिए परमेश्वर ने ऐसी विपत्तियों को उनके मन में मिस्र से घृणा करने और छोड़ने की अनुमति दी। तो जब भी भगवान हमारे जीवन में ऐसी समस्याओं की अनुमति देता है, तो चिंता न करें। समझे कि यह सब एक उद्देश्य के साथ होता है। Second, he used his power to rescue and showed the whole world that he is the Lord and none besides him. Till the Israelites stayed at Egypt, they lead a life as they like. They had their wish and all strive hard to fulfill that alone. दूसरा, उसने उन्हें बचाने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और पूरी दुनिया को दिखा दिया कि वह भगवान है और उसके अलावा कोई नहीं है। जब तक इजरायली मिस्र में रहे, वे अपनी इच्छानुसार जीवन व्यतीत करते हैं। उनकी इच्छा थी और सभी उसे पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। Today's world is the same. Everybody is striving hard to fulfill their own desires. Once you saved, you must understand that you are no more slaves to your previous master, that is the world. A saved Christian should realize that their new master is God, not the world. But sadly, people couldn't understand this even after their salvation, so that they couldn't lead a perfect Christian life. That is, a life where God is the center. Most of the people accept Christ but never allow God to be their master. Instead, they keep on praying to God to fulfill their desire. This type of people won't prevail in their spiritual life. They won't bother about God's plan, decision and guidance. आज की दुनिया वैसी ही है। हर कोई अपनी मांगों को पूरा करने की दिशा में काम कर रहा है। एक बार जब आप बचा लेते हैं, तो समझे कि आप सभी अपने पिछले मालिक के गुलाम नहीं हैं।
यानी दुनिया है। एक बचाए गए ईसाई को यह महसूस करना चाहिए कि उनका नया मालिक भगवान है, दुनिया नहीं। लेकिन दुख की बात है कि लोग उनके उद्धार के बाद भी इस अंतर को नहीं समझ सके, ताकि वे एक पूर्ण मसीही जीवन न जी सके, अर्थात ऐसा जीवन जहां परमेश्वर केंद्र है। अधिकांश लोग मसीह को स्वीकार करते हैं, परंतु कभी भी परमेश्वर को अपना स्वामी नहीं बनने देते। इसके बजाय वे अपनी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं। इस प्रकार के लोग अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रबल नहीं होंगे। वे परमेश्वर की योजना, निर्णय और मार्गदर्शन की परवाह नहीं करेंगे। See how God led them out of Egypt. They had a very good leader, Moses, who was educated in all the learning of Egypt, and he was a man of power and words and deeds. The scholar says that his hands was involved in building great architecture and Egyptian cities like Ramses. So to consider that Moses was a scholar, a great capable engineer and full of wisdom. But when God led them, all were strictly instructed to follow God's commands. देखो कैसे परमेश्वर उन्हें मिस्र से बाहर ले आया। उनके पास एक बहुत अच्छा नेता मौस था, जो मिस्र की सभी विद्याओं में शिक्षित था और वो शब्दों और कर्मों में शक्तिशाली व्यक्ति था। विद्वानों का कहना है कि उसके हाथ रामसेस जैसे मिस्र के शहरों में महान वास्तुकला के निर्माण में शामिल थे। इसलिए यह विचार करना कि मूसा एक विद्वान, एक महान सक्षम इंजीनियर और ज्ञान से भरा हुआ था, लेकिन जब भगवान ने उनका नेतृत्व किया तो सभी को सख्ती से निर्देश दिया गया कि वे अकेले भगवान की आज्ञा का पालन करें। When you follow Jesus, understand that all your worldly qualifications are vain. Knowledges are worthless. Positions, wealth and money, everything is useless. You are expected to follow God's commandments alone. But in contrast, false teachers were encouraging people to ask God to fulfill their own desires. Ask God whatever you like, and so that it will be created. Desire and you will receive it. जब आप यीशु का पालन करते हैं तो समझे कि आपकी सभी सांसारिक योग्यताएं व्यर्थ है, ज्ञान बेकार है, संपत्ति, पद और धन सब कुछ बेकार है। आपसे परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने की अपेक्षा की जाती है, लेकिन इसके विपरीत झूठे शिक्षक लोगों को प्रोत्साहित कर रहे थे कि वे भगवान से पूछें कि उन्हें क्या पसंद है, आदेश दें ताकि यह बनाया जा सके। इच्छा करें और आप इसे प्राप्त करेंगे। In all these instructions, where is God's will? Where is room for His desire? Keep this in your mind. Believers are bought by the blood of Jesus. They are redeemed because of His sacrifice. So that we are no more ours, we belong to God. To fulfill His desire must be our sole wish for the rest of our life. Here only most of the Christians go wrong. After salvation also they want to lead a selfish life. That brings chaos in their spiritual life. If you mix your desire in between, then your destination won't be Canaan. Instead, it will lead back you to the bondages of Egypt once again. इन सभी निर्देशों में ईश्वर की इच्छा कहाँ है? भगवान की इच्छा के लिए जगह कहाँ है? इसे अपने दिमाग में रखें। विश्वासियों को यीशु के लहू से खरीदा गया है, उनके बलिदान के कारण उन्हें छुड़ाया गया है, ताकि हम अपने नहीं रहे, हम भगवान के हैं। उसकी इच्छा को पूरा करना हमारे जीवन भर की एकमात्र इच्छा होनी चाहिए। यहाँ ज्यादातर ईसाई ही गलत हो जाते हैं। उद्धार के बाद भी वे एक स्वार्थी जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, जो उनके आध्यात्मिक जीवन में अराजकता लाता है। यदि आप अपनी इच्छा को बीच में मिला देते हैं तो आपकी मंजिल कनान नहीं होगी, बल्कि यह आपको एक बार फिर से मिस्र के बंधन में ले जाएगी। The wisest leader Moses and his people left Egypt according to God's plan. They went behind God as He led towards Red Sea. If it was a plan of a human mind, they would have gone to the route where there was way. Now there was no way to move forward because there is a Red Sea in front, and they cannot go back because the Pharaoh's chasing army was behind them. As they went according to God's plan, God parted Red Sea and made a way where there was no way. Not only that, He used that to trap and kill the Egyptians once for all. Israelites not only safely crossed the Red Sea, but also
saw their enemy's destiny. सबसे बुद्धिमान नेता मूसा और उनके लोगों ने परमेश्वर की योजना के अनुसार मिस्र छोड़ दिया। वे भगवान के पीछे चले गए क्योंकि वो उनकी ओर जाता था लाल सागर। यदि यह मानव मन की योजना होती तो वे उस मार्ग पर चले जाते जहां रास्ता था। अब आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं था क्योंकि सामने लाल समुद्र था और पीछे नहीं जा सकता क्योंकि फिरौन की सेना पीछे थी। जैसा कि वे परमेश्वर की योजना के अनुसार चले, परमेश्वर ने लाल समुद्र को दो भागों में विभाजित किया और एक मार्ग बनाया जहां कोई रास्ता नहीं था। इतना ही नहीं, उसने मिस्रियों को हमेशा के लिए फंसाने और मारने के लिए उसका उपयोग किया। इस्राएलियों ने न केवल लाल समुद्र को सुरक्षित पार किया बल्कि अपने शत्रु की नियति को भी देखा। Go according to God's plan so that your spiritual life will remain safe always. God will protect you and all your enemies will be destroyed if you go according to God's plan. So always say, God, your will, not my will. May God bless you till we meet again. परमेश्वर की योजना के अनुसार चलें ताकि आपका आत्मिक जीवन हमेशा सुरक्षित रहे। भगवान आपकी रक्षा करेंगे और यदि आप भगवान की योजना का पालन करते हैं तो आपके सभी शत्रु नष्ट हो जाएंगे। इसलिए हमेशा भगवान आपकी इच्छा मेरी इच्छा नहीं कहें। जब तक हम फिर से नहीं मिलते तब तक भगवान आपको आशीर्वाद दे।